everyone, welcome back to my channel Aslam Coding. So today's lead code problem number is 3423 and this is maximum difference between adjacent elements in a circular array, and this problem is also the problem of the day for this lead code challenge. So the problem is, given a circular array num, find the maximum absolute difference between adjacent elements. So a circular array num is given, and what you have to do is that you have to find a maximum absolute difference between their adjacent elements. And here note is given that in a circular array the first and the last elements are adjacent. So एक सर्कुलर एरे दिया हुआ है और सर्कुलर एरे में हमें क्या करना है कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में। अब जब ये जैसे इसने बोला सर्कुलर एरे, इसका मतलब कि जो लास्ट एलिमेंट होगा एरे का वो फर्स्ट वाले का एडजेसेंट होगा। इससे 1 का एडजेसेंट है 2 का एडजेसेंट है 4, एंड क्योंकि ये सर्कुलर एरे है इसका मतलब जो 4 का एडजेसेंट एलिमेंट होगा 1 होगा। सो ये बात हमें ध्यान देनी है। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सर्कुलर एरे में। तो देखो एग्जांपल में क्या दिया हमें कि नम की वैल्यू देखिए 1, 2 एंड 4। अगर हमें डिफरेंस निकालना होगा हमें क्या करना है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। तो साइन यहाँ पे मैटर नहीं करता, बस हमें डिफरेंस देखना है। तो अगर हम देखो पहला क्या करेंगे, अगर हम अब देखो एक बात ये है ना कि एक्चुअली देखो 1 माइनस अगर हम 2 करेंगे तो कितना आएगा हमें, इसका जब एब्सोल्यूट वैल्यू से लेंगे एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमें 1। फिर आगे हम लोग जाएंगे ऐसे, फिर हम क्या करेंगे 2 माइनस 4 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 2 का। फिर उसके बाद अब क्योंकि ये सर्कुलर एरे है तो हमें क्या करना होगा कि ये लास्ट एलिमेंट है और ये फर्स्ट, इसका भी हमें डिफरेंस निकालना होगा। फिर क्या करेंगे हम लोग 4 माइनस 1 करेंगे, इसका भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो क्या है, एक एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 आया, फिर 2 आया और 3 आया। तो हमें क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है एब्सोल्यूट एडजेसेंट एलिमेंट को। तो मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ पे क्या है 3 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इस वाले का आउटपुट आएगा 3। इन द सेम वे suppose we take one example like with us, like suppose we are taking like the second example, that is -5, then we have been given -10 and then it is -5. So like that it is given. So in this example again we'll just take the mod and just like find out the difference, like -5 and minus minus it will become here +10. So this one will give you like 5. Then again if we will difference from these element like -10 and minus 5, so this will also become, this will be also 5, okay. And the third one, that is -5 and again minus plus, so this will be +5. So third one is giving you 0. So out of these the maximum difference between the adjacent element, that is 5. So this is a very easy problem based on the circular array concept. So hope you understand this both example 1 and example 2. So the problem what we are facing is that if we start a for loop, then we can find the difference between these then these, but there is circular array, so you have to find the difference between these element and also this first one. So for that we'll have to use something, and in this problem what we'll do is that we will just find the difference at each step and we will compare it with the next one, and after that at the end the maximum value we'll got, that will return it. So let's jump on to the coding part now. It's so easy now. So let's start coding. Let me zoom the screen a little bit. Like it's very simple. So what you have to do is that first you have to make the find the size of the element. So n equal to, here n is nums dot size. तो इसका हम साइज निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एक हम पहले से ही फाइंड कर लेते हैं, जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है अभी एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो हमारा लास्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट वाला फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि सीधा यहीं पे फाइंड कर लेते हैं डिफरेंस, नम्स ऑफ जीरो स्टार्टिंग एलिमेंट माइनस नम्स ऑफ n-1। इसका तो हमारा काम पहले से कंप्लीट हो गया, हमें लास्ट वाले का अब झंझट नहीं रहेगा। सीधा हम फॉर लूप करते हैं और यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से हम स्टार्ट करेंगे एंड आई लेस देन n आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे दो काम करना है। एक हम करना है कि एक हम टेम्प्रोरी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, क्या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, कोई भी ले सकते हैं, नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई माइनस 1, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस हमने स्टोर किया टेम्प के अंदर। हम फिर क्या करेंगे, जो हमारा ये मैक्सिमम था इस वाले से हम इसको कंपेयर कराएंगे, सो और इसको इनिशियलाइज भी कर देंगे मैक्सिमम के लिए, इस मैक्सिमम से और जो ये टेम्प के अंदर जो वैल्यू है इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारे इस तरह से हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे अपना मैक्सिमम वैल्यू। जैसे इसने बताया था यहाँ पे, देखो एक बार फिर से मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 माइनस, इससे जो हमारा आएगा 4 माइनस 1, एक तो 3 ऑलरेडी हो चुका है एमएक्स के अंदर, ये 3 ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो हम यहाँ पे करेंगे 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब यहाँ पे 3 और 1 में कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम भी हमारा 3 है। फिर आगे चलेगा तो 4 माइनस 2 यहाँ पे आएगा 2, फिर 3 और 2 में से हम कंपेयर मारेंगे तो 3 भी हमारा क्या रहेगा मैक्सिमम। तो लास्ट में मैक्सिमम हम ये 3 को रिटर्न करते हैं। तो ना अब इसको हम ड्राई रन कर लेते हैं, सबमिट करते हैं कोड को, ठीक है। तो ये हमारा कोड फाइनली सबमिट हो गया। So please do subscribe my channel Aslam Coding for more such videos, and I will be making more lead code problems videos on my channel. So please do subscribe it.